السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے حاصل عزیز، جو کہ تحریر ہے وجیہہ محمود کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 16۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی گھر پہنچا تھا۔ اس نے اپنا موبائل ٹیبل پر رکھتے اپنی کن پٹی مسلی۔ وہ ابرو کی ضد پر شدید غصے میں تھا۔ اس کی خاطر صرف ایک کیس نہیں چھوڑ رہی تھی، جبکہ وہ ماضی میں اس کے لیے کیا کچھ کر چکا تھا کہ ابرو کو اس کا کیا گیا کوئی بھی احسان یاد نہیں تھا۔ وہ بینی سوچوں میں گم تھا کہ اسے جلال تایا اپنے کمرے میں سے لاؤنج کی جانب آتے دکھائی دیے۔ ان کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ وہ اسی جانب آ رہے تھے۔ تمہیں معلوم ہے اشر کہ یہ کیس کون لڑ رہا ہے؟ وہ اس کے قریب باتیں بولے، جس پر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ان کی بات پر اس نے گہری سانس لیتے آنکھیں بند کیں اور دوبارہ آنکھیں کھولتے ان کی جانب دیکھا، مگر خاموش رہا۔ جبکہ جلال تایا کی بلند آواز پر سائمہ تائی بھی لاؤنج میں آ گئی تھیں۔ وہ سب عماد کی گرفتاری پر بہت پریشان تھے۔ تمہاری خاموشی سے صاف ظاہر ہو رہا ہے اشر کہ تم جانتے ہو عماد کے خلاف یہ کیس کون لڑ رہا ہے۔ وہ غصے سے بولی۔ اس سے پہلے کہ اشر کچھ کہتا سائمہ تائی بول پڑی۔ یہ کیس کون لڑ رہا ہے جلال؟ سائمہ تائی کے سوال پر جلال تایا نے ایک ناگوار نظر خاموش کھڑے اشر پر ڈالی اور بولے، اس کی بیوی آبرو، وہ لڑ رہی ہے یہ کیس۔ سائمہ تائی ایک دم حیران ہوئی، مگر پھر فوراً چہرے پر غصے کے تاثرات نمایاں ہوئے اور زبان زہر اگلنے لگی۔ میں تو پہلے ہی دن سے آپ دونوں کو سمجھانا چاہ رہی تھی کہ یہ لڑکی ناگن ہے، ناگن ہمارے گھر کی ساری خوشیوں کو یہ ڈائن نگلنا چاہتی ہے۔ وہ غصے سے بولی اور اپنی بات جاری رکھی تھی، مگر آپ دونوں نے میری ایک نہ سنی اور آج میرا عماد اس کی وجہ سے تھانے میں ہے۔ اشر اب بھی خاموش کھڑا تھا۔ تم نے آبرو کو اس کیس کے متعلق بات نہیں کی تھی اشر؟ جلال تایا کے سوال پر اشر بولنے لگا، جی ابو میں نے بات کی تھی، مگر وہ رکا اور جلال تایا کی جانب دیکھا۔ اس نے میری بات نہیں مانی۔ اس کی بات پر جلال تایا کے غصے میں اضافہ ہوا تھا۔ کیا مطلب تمہاری بات نہیں مانی؟ تم اس سے ایک بات نہیں منوا سکے؟ ان کی آواز اونچی ہو گئی تھی۔ وہ جو آج تک تمہاری ایک بات ماننے سے انکاری ہے، کل کو تم اس کے ساتھ پوری زندگی کیسے گزارو گے؟ جلال تایا کی بات پر سائمہ تائی فوراً بولی تھی، خدا غارت کرے اس آبرو کو، ابھی اس گھر میں اس کے منوس قدم داخل نہیں ہوئے کہ میرے گھر کا سکون برباد ہو گیا ہے۔ کل کو اگر وہ یہاں آ گئی تو نہ جانے کیا کیا دیکھنا پڑے گا۔ آج ان کے الفاظ پر کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ تم دوبارہ اس سے بات کرو اشر، اور اسے کہو کہ یہ کیس واپس لے لے، اسی میں اس کی بھلائی ہے۔ جلال تایا کی بات پر وہ بولنے لگا تھا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ابو، میں پہلے ہی اس سے یہ بات کر چکا ہوں، اس پر وہ مجھے انکار بھی کر چکی ہے۔ اشر کے لہجے میں مایوسی تھی۔ اسے یہ دن صرف آبرو کی ضد کی وجہ سے دیکھنا پڑ رہا تھا۔ تم کیسے مرد ہو اشر، اپنی بیوی کی ضد کے آگے اتنی آسانی سے ہار مان گئے؟ تمہیں شرم آنی چاہیے اشر۔ جلال تایا کی باتیں اشر گردن جھکائے سن رہا تھا، جبکہ سائمہ تائی کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی اسی وقت آبرو کا وجود اس دنیا سے ختم کر دے۔ تم اپنے بھائی کی خاطر اسے مجبور نہیں کر سکے۔ تم ابو میں اشر نے ان کی بات کاٹی۔ جلال تایا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ مجھے کچھ نہیں سننا اشر، تم جتنی جلدی ہو سکے آبرو کو سمجھاؤ، اسے یہ کیس ہر صورت واپس لینا ہوگا، ورنہ نتائج یقیناً اسے پسند نہیں آئیں گے۔ وہ غصے سے اپنی بات مکمل کرتے وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے پر سائمہ تائی نے اشر کو مخاطب کیا، یہی انجام ہوتا ہے اشر ماں کی نافرمانی کا۔ تم نے میرے خلاف جا کر اس لڑکی سے شادی کی نا، اب دیکھ لو اس کے کارنامے۔ وہ اپنی بات کہتے وہاں رکی نہیں تھی، جبکہ اشر ایک بار پھر لاؤنج میں اکیلا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ وہ کیسے آبرو کے لیے ہر بار اپنی ماں سے لڑ جاتا تھا، اور اس نے اس کی محبت کا یہ صلہ دیا تھا کہ وہ آج اپنے ماں باپ سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہا تھا، جس کی وجہ صرف اس کی ایک بے معنی ضد تھی۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، نور نے تمہیں خواہ پریشان کیا۔ وہ بیڈ پر نیند دراز تھی، جبکہ تاشفین ان کا بی پی چیک کر رہا تھا۔ بھائی امو جان جھوٹ بول رہی ہیں، ان کی طبیعت بہت خراب تھی، ان سے ہلا تک نہیں جا رہا تھا، میں نے بہت مشکل سے انہیں سنبھالا ہے۔ سبرینا کی حالت کچھ دیر پہلے واقعی بگڑ گئی تھی۔ تاشفین نے خاموشی سے بی پی آپریٹر سائٹ پر رکھا اور سبرینا کی جانب دیکھتے بولنے لگا تھا، آپ نے دوپہر میں کیا کھایا تھا امو جان؟ صرف ایک گلاس جوس پیا تھا بھائی۔ جواب نور کی جانب سے آیا تھا، جس پر تاشفین نے خفگی سے سبرینا کی جانب دیکھا۔ امو جان اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ میں نے پہلے بھی بہت بار آپ سے کہا ہے کہ آپ کھانے پینے میں یوں لاپرواہی مت کیا کریں، مگر آپ میری بات نہیں مانتی۔ سبرینا اس بات کے جواب میں خاموش رہی تھی۔ ان کی خاموشی پر تاشفین یکدم ٹھٹکا تھا۔ نور تم امو جان کے لیے کھانے کو کچھ لے کر آؤ، پھر میں نے میڈیسن دیتا۔ نور تاشفین کی بات پر اس بات میں سر ہلاتی کمرے سے چلی گئی تھی۔ امو جان، تاشفین کے پکارنے پر سبرینا نے آنسوؤں سے بھری آنکھیں اٹھاتے اپنے بیٹے کی جانب دیکھا تھا، جو ان کا حاصل عزیز تھا۔ مجھے بھی نہیں بتائیں گی کہ کیا بات ہے؟ آنسو بے اختیار رخسار پر بہنے لگے۔ تاشفین نے
ताशमीन ने उनके आंसू साफ करते हुए उनका हाथ थामा, जिस पर वो बोलने लगी। आज आज 30 साल हो गए हैं ताशमीन, 30 साल। वो रो रही थी। उनकी अधूरी बात के बावजूद भी ताशमीन ये समझ गया था कि वो किस बारे में बात कर रही हैं। वो अपनी माँ की हर एक एक अजियत का गवाह था। मैं वो मंजर, वो लम्हे आज भी नहीं भूल पाती ताशमीन, वो रुंधी हुई आवाज़ में बोली थी। मैं चाहती हूँ कि मेरी याददाश्त से वो सब तक यादें मिट जाएं, मगर वो रो रही थी। ताशमीन ने आगे बढ़ते उन्हें गले लगा लिया था। मत रोएं अम्मू जान, वो उनको सहलाता बोला। खुद को संभालें, आपको मालूम है ना कि आपके ये आंसू मुझे कितनी तकलीफ देते हैं। वो उनके आंसू साफ करते बोला था। मैं क्या करूं ताशमीन, मुझे बताओ मैं क्या करूं। मैं वो सब भूलना चाहती, मगर मगर मैं नहीं भूल पाती। इनका हर आंसू ताशमीन के दिल पर गिर रहा था, और हर आंसू के साथ ताशमीन की फैजान सिद्दीकी नाम के इस शख्स से नफरत बढ़ती जा रही थी। वो शख्स उसका बाप था, जिसे उसने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार भी नहीं देखा था और ना ही देखना चाहता था। उसने उन्हें अपने साथ लगाते उनका माथा चूमा और आंसू साफ करता बोला, अम्मूजान इधर देखें, मेरी तरफ। उसने उनका चेहरा अपनी जानिब किया, जिस पर सबीना उसकी जानिब देखने लगी। खुद को यूं अजियत मत दिया करें अम्मूजान, ये ज़िंदगी पहले ही आपके बहुत इम्तिहानात ले चुकी है। खुद को मज़ीद परेशान मत किया करें। बस एक बात याद रखें। वो उनकी आंखों में देखता बोल रहा था, चाहे जो भी हो, मैं आपका बेटा हूँ, आपका खून, हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। उसकी बात पर सबरीना के लबों को एक आसूदा मुस्कुराहट ने छुआ, क्योंकि वो जानती थी कि सामने बैठा वजूद ही उनके जीने की वजह था। ओके अमल बाय, कल मुलाकात होगी। रुतबा ने अमल के हमरा कदम उठाते उसे मुखातिब किया। वो दोनों यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में मौजूद थीं। बाय, अमल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रुतबा कदम उठाती हुई यूनिवर्सिटी के गेट की जानिब बढ़ रही थी, जबकि अमल कुछ फासले पर लगे बेंचेस में से एक पर जा बैठी और मोबाइल ऑन करते एक मैसेज टाइप करने लगी। मोबाइल बंद करते उसने स्क्रीन पर देखा। शाम के 5 बज चुके थे। अभी कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि अचानक उसे अपने बराबर में कोई बैठता हुआ महसूस हुआ। उसने गर्दन मोड़कर देखा। आने वाला शहरियार था। तुम्हारी खास दोस्त चली गई, वह हंसता हुआ बोला, जिस पर अमल ने उसकी जानिब देखते जवाब दिया। वो और मेरी खास दोस्त, वह इस्तज़ाइया हंसी थी। खैर, वो तो यही समझती। शहरियार की बात पर अमल फौरन बोली, तो इस बात का एहसास दिलाने वाली भी तो मैं ही हूं ना। वो मुस्कुराते बोली और एकदम चेहरे के तासुरात बदल बदल गए थे। उसने अपनी बात मुकम्मल की। वो जल्द उस नाम नेहाद दोस्ती का इख्तिताम करने वाली हूँ मैं। इसका लहजा सख्त था। यानी इस दोस्ती का इख्तिताम होने में सिर्फ कुछ वक्त बाकी है। शहरियार सामने से गुजरते स्टूडेंट्स की जानिब देखता बोला, बिल्कुल, तुम देखना कैसे मैं सबके सामने उसकी औकात याद दिलाऊंगी। वो नफरत से बोली थी। यानी बहुत जल्द रुतबा सिद्दीकी की इज्जत का तमाशा हम सब एंजॉय करने वाले। उसका लहजा अहतक आमेज था। अमल उसकी बात पर इस बात में सर हिलाते दोबारा बोली थी, तुमने सब रेडी कर लिया है ना शहरी। उसकी बात पर शहरियार मुस्कुराया था। यस अमल, डोंट यू वरी, एक एक चीज़ तैयार है, बस इंतज़ार है तो इस घड़ी का जब सबके सामने मैं उसे बेइज्जत करूंगा। उसके लहजा उसका लहजा सर्द था। बहुत इंतज़ार किया है हम दोनों ने इस वक्त का। अमल की बात पर शहरियार ने उसकी जानिब देखा। बिल्कुल, और बहुत जल्द हम दोनों के इंतज़ार का फल हमें मिलते हमारा इंतकाम पूरा हो जाएगा। उसकी बात पर अमल ने इस बात में सर हिला दिया था। वो सोफे पर बैठी लैपटॉप गोद में रखे काम में मसरूफ़ थी। कुछ दिन बाद कोर्ट में इस केस की पहली पेशी थी और बहुत काम भी बाकी था। सामने रखे टेबल पर चाय का भाप उड़ाता हुआ कप मौजूद था। उसने कप पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया कि बेल की आवाज़ ने उसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया। वो लैपटॉप टेबल पर रखते उठ खड़ी हुई और दुपट्टा ओढ़े कदम गेट की जानिब बढ़ाए थे। गेट खोलते उसकी नज़र सामने खड़े अशर पर पड़ी थी और उसी वक्त दोनों की नज़रें मिली थीं। दोनों के चेहरों के तासुरात सर्द और सख्त थे। आबरू ने सलाम करते उसे अंदर आने का रास्ता दिया था, जिस पर वो बगैर जवाब दिए अंदर दाखिल हो गया। आबरू को उसकी ये हरकत शदीद नागवार गुजरी। वो गेट बंद करते उसके पीछे कदम उठाने लगी थी। लाउंज में दाखिल होते खामोशी ने अशर का इस्तकबाल किया था। आबरू के कुछ कहने से पहले सौलिया बेगम अपने कमरे से निकलती लाउंज में आ गई थी। अशर बेटा, तुम आओ बैठो, वो मुस्कुराते हुए बोली। मैं यहाँ बैठने नहीं आया चची, वो रुके अंदाज में बोला था। उसके जवाब पर सौलिया बेगम के लबों से मुस्कुराहट गायब हुई थी, जबकि उसकी ये बात लाउंज में दाखिल होती आबरू भी सुन चुकी थी। मैं यहाँ सिर्फ अपनी बात दोहराने आया, अभी भी वक्त है आबरू, ये समझ जाओ, अपनी जिद छोड़ दो। उसकी बात पर आबरू फौरन बोली थी, ये मेरी इसे समझाएं कि ये इस फजूल और बेमायनी जिद को छोड़ दे, अम्मी और अब्बू से माफ़ी मांगे। वो उसकी बात काटते बुलंद आवाज़ में बोला। उसकी ऊंची आवाज़ सुनते कमरे में मौजूद रुतबा और उसबा भी बाहर आ गई थी। किस बात की माफ़ी? आबरू की आवाज़ में कमी नहीं थी।
सालिया बेगम चेहरे पर मुतफक्कर तासुरात सजाए इन्हें देख रही थी। आबरू के सवाल पर वो उसकी जानिब मुड़ा था। तुम्हारी जिद की वजह से जो तकलीफ उन्हें पहुंची है उसकी माफ़ी, वो उखड़े लहजे में बोला था। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिस पर मुझे किसी से भी माफ़ी मांगनी पड़े, बल्कि यही बात अगर अपने भाई मेरे भाई को बार बार बीच में मत लाओ। तुम पहले ही उसकी ज़िंदगी में तूफान ला चुकी हो। इतनी मुश्किल में है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से, वो चिल्लाया था। और वो लोग जिनकी ज़िंदगी आपके भाई ने बर्बाद की है, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? आबरू ने दो बदो जवाब दिया। बस आबरू, खामोश हो जाओ। मेरे भाई ने कुछ नहीं किया। वो लोग महज धोखेबाज और झूठे हैं, और तुम? वो उंगली उठाते आबरू को तंबीह करते बोला, जिस पर आबरू बोलने लगी। ठीक है अशर, मान लिया कि आपकी हर बात दुरुस्त है। वो लोग झूठे और आपका भाई सच्चा, मगर अब आप मेरी बात गौर से सुनिएगा। सोलिया बेगम को मालूम था कि वो किस बारे में बात करने जा रही। आज से 5 साल पहले मेरे अगवा की वारदात तो याद है ना आपको? अशर खामोश रहा। इसके पीछे भी आपके भाई का हाथ था। उसकी बात पर अशर हंसने लगा। कोई और इल्ज़ाम रह गया है तो तुम मेरे भाई पर लगाना चाहती? आबरू फौरन बोली थी। लाउंज में खड़े बाकी नफूस इनके दरमियान होने वाली इस तकरार के शाहिद थे। मैं सच कह रही हूँ अशर, मेरे अगवा के पीछे इमाद का ही हाथ था। आप अपनी बकवास बंद करो आबरू। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे भाई के खिलाफ जो चाहे बोलती जाओगी और मैं सुन लूंगा? वो धाड़ा था। आज तुम इसके सर अपने अगवा का इल्ज़ाम लगा रही हो, तो कल को तुम कहोगी कि मेरा भाई कातिल भी है। उसने कदम आबरू की जाने बढ़ाए थे और उंगली उठाते उसे वार्न करने लगा। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो आबरू, मैं तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा भाई कैसा है। वो अनजान था बहुत सी चीज़ों से, बेखबर था बहुत से मामलात से, और ये बेखबरी मुस्तकबिल में उसके लिए बहुत नुकसानदेह साबित होने वाली थी। अम्मी तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक कहती थी आबरू, बिल्कुल ठीक। मैं ही पागल हूँ, बल्कि था। अब मेरी आंखों पर बंधी पट्टी खुल चुकी है और मुझे लोगों के असल चेहरे दिखाई देने लगे। वो बदल गया था। हाँ, वो बदल गया था। काश के आप अपनी इन आंखों से अपने भाई का असल चेहरा भी देख पाते। आबरू की बात पर वो नफ़ी में सर हिलाते दोबारा बोला, तुम्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। तुम शौक से अपनी ज़िद पूरी करो, मगर देखना तुम्हारी ज़िद का अंजाम कितना भारी होगा, क्योंकि अब मैं तुम्हें तुम्हारी ज़ुबान में ही जवाब दूंगा। वो कहते वहाँ रुका नहीं था और तेज तेज कदम उठाता वापस चला गया था। आबरू ने आंखें जोर से बंद करते गहरा सांस लिया। इस बार रुतबा ने आज तक अशर को इतने गुस्से में नहीं देखा था। सोलह बेगम आबरू के करीब आई और उसके कंधे पर हाथ रखते अपनी जानिब मुतवज्जा किया था। परेशान मत हो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आबरू ने उनकी जानिब देखा। सोहलिया बेगम ने आंखें बंद करते उसे अपने साथ होने का एहसास दिलाया था। आबरू के लबों को आसूदा मुस्कुराहट ने छुआ था। उसकी आधी परेशानी एकदम दूर हो गई थी। वो उसकी माँ थी और अब उनका साथ उसे इन मुश्किलात का सामना करने की ताकत दे रहा था। वो गाड़ी से उतरते तेज तेज कदम उठाती रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुई। आसपास मौजूद लोग भी उनकी जाने मुतवज्जा हुए। गहरे नीले रंग का लिबास पहने इस वक्त बहुत गुस्से में थी। अंदर दाखिल होते उन्होंने मुतलाशी नज़रों से इधर उधर देखा था। एक टेबल पर वो उन्हें सामने बैठा दिखाई दिया। वो कदम उठाती उस टेबल तक गईं और खड़े खड़े उसे मुखातिब किया। क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? उनके सवाल पर सामने बैठा शख्स मुस्कुरा दिया था। बैठ जाएं फाइका बेगम, बैठ जाएं। आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। फाइका बेगम ना चाहते हुए भी बैठ गईं और अपना पर्स टेबल पर रखा था। मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं है कि तुम्हारे साथ बैठकर बातें सुनूं, इसीलिए जो भी बात है जल्दी करो। फाइका बेगम गुस्से से बोली, मगर आवाज़ ज़्यादा ऊंची नहीं थी। इत्मीनान रखिए फाइका बेगम, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। वो बोलने लगा जबकि निगाहों का मरकज़ अपने हाथ का जला हुआ हिस्सा था। मुझे 15 लाख चाहिए। उसकी बात पर फाइका बेगम का दिमाग भग से उड़ा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अभी 2 हफ्ते पहले मैंने तुम्हें 10 लाख का चेक दिया है, और अब तुम? फाइका बेगम की आवाज़ कुछ बुलंद हुई। मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी, वो गुस्से से बोली थी। मुझे ये रकम इसी हफ्ते चाहिए, वो शख्स इत्मीनान से बोला था। लगता है तुम्हारा दिमाग वाकई ख़राब हो गया है। मैं तुमसे कह रही हूँ कि मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगी, और तुम? वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। सामने बैठे शख्स के चेहरे पर अभी इत्मीनान बरकरार था। तुम्हें क्या लगता है तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हो जाऊंगी? हाँ, बिल्कुल नहीं। मैं इस बार तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी। वो टेबल पर पड़ा अपना पर्स उठाती बोली। सोच लें फाइका बेगम, एक बार सोच लें, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। मैं अच्छी तरह सोच चुकी हूँ कि मैंने कहा कि एक बार अच्छी तरह सोच लें, क्योंकि अगर मेरी जुबान खुल गई तो आपके पास कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। वो उनकी बात काटता बोला। कुछ पल के लिए फाइका बेगम खामोश हो गई, मगर फिर बोली, तो मुझे यूं ब्लैकमेल नहीं कर सकते। इस बार उनका लहजा कमज़ोर था। मैं ब्लैकमेल नहीं कर रहा, हकीकत बता रहा हूँ। अगर मेरी जुबान खुल गई तो आप खाली हाथ रह जाएंगी। वो इत्मीनान से बोला। फाइका बेगम दोबारा बैठ गई थी। मगर मैं तुम्हें इतनी बड़ी रकम
बड़ी रकम कहाँ फायका बेगम, सिर्फ 15 लाख ही तो हैं। वो उनकी जानिब देखता बोला। और मशहूर बिजनेसमैन फयाज लशारी की बीवी के लिए तो 15 लाख बहुत मामूली रकम। इसी बात पर फायका बेगम चेहरे पर परेशानी की तासुरात सजाए बोली थी। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। चले मैं आपको कुछ रियायत देता हूँ। 1 हफ्ते की बजाय बजाय आप 10 दिन तक ये रकम मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दीजिएगा। उसने दोबारा उनकी बात काटी थी। मगर मैं, फायका बेगम के लहजे में बेबसी थी। इसी में आपकी भलाई है फायका बेगम। इस बार उसके लहजे में वार्निंग थी। फायका बेगम खामोश हो गई क्योंकि अब खामोशी के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। अब कैसी तबीयत है आपकी अम्मू जान? ज़ावियार कमरे में दाखिल हुआ जहाँ सामने बेड पर सबरीना और नूर बैठी थी। वो दोनों उसकी जानिब मुतवज्जा हुई। दीवार पर मौजूद घड़ी इस वक्त शाम के 8 बजा रही थी। सबरीना की तबीयत कल की निस्बत अब काफ़ी बेहतर थी। ज़ावियार बेड पर सबरीना के करीब बैठ गया था। अल्लाह का शुक्र है बेटा, अब बहुत बेहतर है। सबरीना ने उसके बालों में हाथ फेरते जवाब दिया। नूर आपका ख्याल नहीं रखती ना अम्मू जान? ज़ावियार की इस बात पर नूर ने गुस्से से उसकी जानिब देखा और बोलने लगी। वाह, कह भी कौन रहा है, खुद तो पूरा दिन जैसे घर में होते हो ना, और मुझे कह रहे हो मैं अम्मू जान का ख्याल नहीं रखती। नूर की बात पर ज़ावियार आंखें घुमाते हुए बोला। मैंने सोच लिया है कि अब मुझे भी अम्मू जान के लिए कुछ करना होगा। वो उसकी बात को नज़रअंदाज करता अपनी कहने लगा। सबरीना और नूर ने सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देखा। यही कि नूर तो अब आपका ख्याल नहीं रखती, तो हमें घर में किसी ऐसे इंसान को लाना होगा कि जो अम्मू जान का ख्याल रखे। नूर ने खफगी से उसे देखा जबकि उसकी बात पर सबरीना मधम सा मुस्कुराई थी। डॉक्टर साहब तो अभी भी राजी नहीं, मुझे ही कुर्बानी देनी होगी। वो दोनों समझ चुके कि इसका इशारा किस जानिब है। देखें अम्मू जान, ये कैसे आपकी तबीयत का बहाना बनाकर अपना मतलब निकाल रहा है। कितनी जल्दी है इसे शादी की। नूर के बोलने पर सबरीना हंसने लगी थी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है अम्मू जान? घर में हर वक्त कितना सन्नाटा होता है ना, कोई हलचल ना कोई मज़ा। कुछ भी नहीं, वो कदरे अफसोस से बोला था। तो फिर बताओ कि तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? सबरीना के बोलने पर ज़ावियार के होठों पर मुस्कुराहट आई थी। अम्मू जान, आप इसकी बातों में मत आएं। पहले भाई की शादी होगी फिर इसकी बारी आएगी। नूर ने सबरीना की जानिब देखते कहा। तुम खामोश रहो नूर। लड़कियां अच्छी लड़कियां बड़ों के मामले में यूं नहीं बोलती। ज़ावियार की बात पर नूर ने गुस्से से ज़ावियार को घूरा और बोली। तो फिर ठीक है अम्मू जान, हम ज़ावी के लिए ऐसी लड़की लाएंगे जो बहुत कम बोलती हो, बल्कि गूंगी लड़की ठीक रहेगी। सबरीना उसकी बात पर हंसने लगी। बिल्कुल भी नहीं, मुझे हर वक्त चुप रहने वाली मासूम लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। ज़ावियार ने नापसंदीदगी का इजहार किया था। तो फिर कैसी लड़कियां पसंद हैं तुम्हें? सबरीना ने दोबारा ज़ावियार से उसकी पसंद पूछी थी। बिल्कुल मेरे जैसी, ज़हीन, खूबसूरत और हर वक्त एक्टिव रहने वाली। मैं एक बात कहूँ तो वो दो सुनाए। मैं एक प्लेट तोड़ूं तो वो दो प्लेट तोड़े। ज़ावियार की इस बात पर नूर फौरन बोली थी। अस्तगफिरुल्लाह, ये कैसी मिसाल थी ज़ावी? मैंने अपनी पसंद बताई है। ज़ावियार मज़े से बोला था। तुम्हारी पसंद का तो अल्लाह ही मालिक है। क्यों, तुम्हें इससे क्या मसला है? नूर ने अपना रुख सबरीना की जानिब मोड़ा। मसला ही मसला है। हमसे एक तुम संभलते नहीं, और अगर तुम जैसी और आ गई तो हमारा घर तो चिड़ियाघर बन जाएगा। नूर की बात पर ज़ावियार के दिमाग में एक ख्याल नमूदार हुआ। मैं सोच रहा हूँ अम्मू जान के क्यों ना हम सबसे पहले नूर को ही रुखसत कर दें, ताकि ये जालिम नंद बनकर मेरी बीवी पर जुल्म ना कर सके। नूर ने फौरन उसके बाजू पर जबरदस्ती की थी। तुम्हें शर्म नहीं आती ज़ावी, ऐसी बात करते? वो खफगी से बोली थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो डिटाई से बोला था। इससे पहले कि नूर कुछ कहती, ज़ावियार का फ़ोन बजने लगा था। अम्मा जान, मेरे मशवरे पर सोचिएगा ज़रूर। वो कहता बेड से उठा और कमरे से चला गया था। बदतमीज़ ना हो तो। नूर अब तक उसकी बात पर खफा थी, जबकि सबरीना उसकी इस नोक झोंक पर हमेशा की तरह मुस्कुरा रही थी। ये औलाद ही तो उनका कुल सरमाया थी। उनकी ज़िंदगी में रंग इन्हीं की बदौलत थे। वो अपने ऑफिस में बैठी इस वक्त बहुत मुतमईन और पुरसकून थी। वो कुछ देर पहले ही पुलिस स्टेशन से वापस आई थी। असलम सरकारी गवाह बनने के लिए राजी था। वो अदालत में सरकारी गवाह बनते तमाम जराइम का एतराफ़ करने वाला था। आबरू बहुत खुश थी क्योंकि उसे मालूम था कि असलम की गवाही के बाद इस केस में और कोई रुकावट बाकी नहीं रहेगी और फैसला वर्दा के हक में ही सुनाया जाएगा। असलम के मुतालबे के मुताबिक वो उसे अगली पेशी तक जमानत पर रिहा करवा कर आई थी। तब तक 3 दिन बाद होने वाली पेशी में उसका पेश होना बहुत ज़रूरी था, ताकि केस को मज़ीद टालने की बजाय जल्द फैसला करते वर्दा के मुजरिमों को उनके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सके। मोबाइल पर होती बेल ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल की थी। उसने हाथ बढ़ाते फ़ोन उठा लिया और कॉल अटेंड करते फ़ोन कान से लगा लिया था। हेलो, वो पुरसकून अंदाज में बोली, मगर दूसरी जानिब से कही जाने वाली बात सुनते उसके चेहरे का सकून गायब हुआ था।
चेहरे के तासुरात सख्त हो गए, आंखों में नागवारी दर आई थी। कुछ लम्हे बाद वो फ़ोन काट चुकी थी। एक पुरसकून और इत्मीनान भरी खबर के बाद अब उसे एक बुरी खबर सुनने को मिली थी। इमाद को रिहा करवा लिया गया था और उसे रिहा करवाने वाला शख्स अशर सिद्दीकी था। उसने गहरा सांस लिया। इस जंग में उसके मुखालिफ उसके अपने थे। खून के रिश्ते और अपनों से होने वाली जंगें कानूनी जंगों से भी मुख्तलिफ होती हैं। जब मुखालिफ आपके अपने हो तो रिश्तों की डोर हमेशा आड़े आ जाती है। इसके टूटने पर अपने हाथ जख्मी होते हैं और बचा लेने पर भी अपना ही वजूद जख्मी होता है। रुतबा आज सोहला बेगम के हमरा सबरीना की अयादत के लिए उनके घर आई थी। वो सोहला बेगम के साथ लाउंज में मौजूद सोफे पर बैठी थी, जबकि सामने सबरीना के साथ बैठी नूर उससे बातें करने में मसरूफ थी। कुछ ही देर गुजरी कि ज़ावियार लाउंज में दाखिल हुआ। सब उसकी जानिब मुतवज्जा हुए। हाथ में पकड़ा हेलमेट और स्याह पेंट कोट इस बात की अलामत था कि वो अभी कोर्ट से आया है। वो उन्हें सलाम करता सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर चला गया। उसने एक बार भी रुतबा की जानिब नहीं देखा था और ये बात रुतबा ने बखूबी महसूस की थी। उसे एकदम ख्याल आया कि शायद ये उस दिन इन दोनों के दरमियान हुई गुफ्तगू का नतीजा है। रुतबा को एहसास हुआ कि उसे उस दिन ज़ावियार का शुक्रिया अदा करना चाहिए था। कुछ देर बाद नूर रुतबा को अपने साथ लिए ऊपर अपने कमरे में आई थी कि अचानक कुछ याद आने पर रुतबा को वहीं बेड पर बैठने का कहते कमरे से चली गई थी। रुतबा वहीं बैठी आसपास मौजूद चीज़ों को देखने में मसरूफ थी कि उसे सामने से ज़ावियार गुजरता दिखाई दिया। वो तेज़ी से उठी और दरवाजे के करीब गई थी। वहीं से उसे पुकारा, ज़ावियार। रुतबा की आवाज़ पर वो रुका। उसकी आवाज़ पहचानता था। उसके मुंह से अपना नाम सुनते वो मुस्कुरा दिया था, मगर फिर अपनी मुस्कुराहट छुपा दे वो पलटा और उसे देखते अपनी जानिब इशारा किया। गोया पूछना चाहता हो कि वो उसे क्यों बुला रही है। गोया वो पूछना चाहता हो कि वो उसे ही बुला रही है या किसी और को। ज़ावियार की इस ओवर एक्टिंग पर रुतबा का दिल चाहा कि अपना सर पीट ले, मगर मजबूरन इस बात में सर हिलाते उसे वजाहत दी कि वो उसे ही बुला रही। ज़ावियार चलता उसके पास आया था। जी कहिए, वो जान पूछकर अपने लहजे में बेजारी लिए बोला था। वो मुझे तुमसे कहना था। रुतबा ने बात का आगाज़ किया। जी कहें, मैं सुन रहा हूँ, वो मसरूफ़ अंदाज में अपना मोबाइल निकालते बोला। रुतबा को इस वक्त इस पर शदीद गुस्सा आ रहा था, मगर उससे बात करना भी ज़रूरी था। शुक्रिया। रुतबा के इस एक लफ्ज़ी जवाब पर वो समझ चुका था कि वो किसी लिए उसका शुक्रिया अदा कर रही, मगर वो ज़ावियार अफरीदी था। इतनी आसानी से उसका शुक्रिया कैसे कबूल कर लेता। शुक्रिया किस लिए? रुतबा फ़ौरन बोली। उस दिन तुम बारिश में मुझे घर छोड़ने आए थे, तब मैंने तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं किया था, मैं भूल गई थी। रुतबा की बात पर ज़ावियार ज़ेरे लब मुस्कुराया। ओह, तो आज आप मेरा शुक्रिया अदा करने मेरे घर आ गई। इसकी बात पर रुतबा आंखें घुमाते बोली, खुशफहमी है तुम्हारी। वो तो मैंने सोचा कि किसी का एहसान ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए। उसके इस जवाब पर ज़ावियार हंसते बोला, ओह, तो शुक्रिया अदा करके आपने अपना एहसान उतार दिया, वाह। वो मुतासिर हुआ। हाँ बिल्कुल। रुतबा के इस जवाब पर उससे पहले कि वो कुछ कहता नूर इन दोनों को कमरे से बाहर खड़ा देख उनके पास आ गई थी। नूर के यहाँ आने पर रुतबा को फ़ौरन अपनी पोजीशन का एहसास हुआ था। उसने मुस्कुराते नूर की जानिब देखा और सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई थी। ज़ावियार की आवाज़ उसकी समात से टकराई। नूर, मेहमानों को खाने का ज़रूर पूछना, क्योंकि घर आए मेहमानों की मेज़बानी करना मेज़बान का फ़र्ज़ होता है। रुतबा समझ गई थी कि उसका इशारा किस जानिब था। रुतबा को फ़ौरन उसे शुक्रिया बोलने पर अफसोस हुआ था। वो सीढ़ियाँ उतरने लगी थी। ये क्या फजूल बात की है तुमने ज़ावी? नूर गुस्से से बोली थी। मैंने मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैं तो कब से खामोश खड़ा। ज़ावियार की नज़रों का मरकज़ सीढ़ियाँ उतरती रुतबा थी। नूर ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा और ज़ावियार को मुखातिब करते बोली, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना ज़ावी? वह मुस्कुरा रही थी। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, एकदम फिट। जवाब फ़ौरन आया था। कहीं तुम मोहब्बत कहीं तुम्हें मोहब्बत तो नहीं होगी? नूर का यह सवाल एकदम गैर मुतवक्का था। ज़ावियार ने फ़ौरन उसकी जानिब देखा। मोहब्बत और मैं? वो इस्तेज़ाइया हंसा था। तुम्हें पता है नूर के दुनिया के सबसे फारिग लोग क्या करते हैं? नूर ने नफ़ी में सर हिलाया था। मोहब्बत? और ज़ावियार अफरीदी के पास करने को बहुत काम है, वो मज़े से कहता वहाँ से चला गया था, जबकि नूर उसकी फजूल बातों पर सर छिटकती सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। बेड पर पड़े मोबाइल पर एक मैसेज मौसूल हुआ, जिससे मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई थी। साथ बैठते वजूद की शिनाख्त हुई। वो फ़ैकल अशारी थी, जो अपने कमरे में आंखें मूंदे बेड पर बैठी थी। इस वक्त शदीद परेशान थी। कुछ देर पहले वो इस रेस्टोरेंट से वापस आई थी और वहाँ होने वाली इस बहस ने उनका सकून छीन लिया था। उन्हें माजी में की गई अपनी गलती शिद्दत से याद आने लगी थी, जिसकी वजह से उन्हें आज ये दिन देखना पड़ रहा था। 30 साल होने को आए थे, मगर आज भी वो इस बेचैनी से जान नहीं छुड़ा पाती थी। काश वो माजी में जल्दबाजी में वो फैसला ना करती, खुदा की रहमत पर यकीन रखती तो आज फिर पुरसकून होती। आंखें खोलते उनकी नज़रें सामने दीवार पर लगी उस तस्वीर पर पड़ी थी। इस तस्वीर में फ़ायका बेगम की एक जानिब शाहज़ैन जबकि दूसरी जानिब शहरयार खड़ा मुस्कुरा रहा था। इस तस्वीर को देखते उनके जहन के पर्दे पर माजी का वो मंजर लहराया था।
اسپتال کا وہ منظر جہاں سے اس معاملے کا آغاز ہوا تھا، ان کے دل میں آج بھی وہ راز موجود تھا جو عیاں ہوتے ہی ان کی زندگی برباد کر سکتا تھا۔ وہ راز ایک کڑوا سچ تھا کہ شاہزین لاشاری ان کی اپنی اولاد نہیں تھا، وہ کسی اور کے جگر کا ٹکڑا تھا، کسی کی خوشیوں کی نوید تھا۔ ان تمام خوشیوں سے اس کے والدین کو محروم کرتے فائقہ بیگم نے وہ خوشیاں اپنی جھولی میں ڈالی تھیں۔ وہ کوئی لاوارث بچہ نہیں تھا، بلکہ فائقہ بیگم بخوشی جانتی تھی کہ شاہزین لاشاری کے حقیقی والدین کون تھے۔ انہوں نے اس کی ماں کے آنسو اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، کیونکہ شاہزین کسی اور کا نہیں بلکہ فیاض لاشاری کی کمپنی کے ایک امپلائی حیات صدیقی کا بیٹا تھا، جسے ایک سازش کے تحت فائقہ بیگم اپنی اولاد بنا چکی تھیں۔ مگر آج وہ اس فیصلے کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تصور کرتی تھیں۔ آج شاہزین ان کے اپنے سگے بیٹے شہریار لاشاری کے ساتھ دولت میں شراکت دار تھا۔ وہ بہت بری بری عادتیں اپنا چکا تھا، جس پر انہوں نے شاہزین کو کبھی روکا نہیں تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ شخص جو اس راز میں ان کا شریک تھا، وہ 30 سال سے مسلسل انہیں بلیک میل کر رہا تھا، جس پر وہ اسے پیسے دیتے اس کا منہ بند کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مگر دن بدن وہ اپنی اس کوشش میں ناکام ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر یہ راز فاش ہو جاتا تو وہ اپنا سب کچھ گنواتے خالی ہاتھ رہ جائیں گی۔ اس نے ٹیبل پر پڑا اپنا کیچر اٹھاتے بالوں کو جوڑے میں قید کیا تھا اور قدم اٹھاتی لاؤنج میں آ گئی تھی، جہاں اسے سامنے ہی صالحہ بیگم اور اسبا بیٹھی دکھائی دی تھی۔ وہ چلتی ان کے پاس آ بیٹھی کہ رتبہ ہاتھوں میں ٹرے اٹھائے ان کے پاس آئی۔ ٹرے میں چائے کے 5 کپ موجود تھے۔ اس سے پہلے کہ ان سب کے درمیان الفاظ کا کوئی تبادلہ ہوتا، باہر گیٹ پر ہوتی تیز دستک نے انہیں اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ کوئی زور زور سے دروازہ پیٹ رہا تھا۔ کارپیٹ پر بیٹھی حرم فوراً اٹھ گئی تھی اور تیزی سے گیٹ کی جانب بھاگی۔ گیٹ کھلتے ہی اس کے سامنے عماد کھڑا نظر آیا تھا، جو گیٹ کھلتے ہی تیزی سے اندر داخل ہوا۔ غصہ اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا لاؤنج میں آیا تھا۔ اسے دیکھتے سب لوگ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس نے قدم آبرو کی جانب بڑھائے۔ آبرو بھی قدم اٹھاتے اس کی جانب بڑھی تھی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا آبرو، وہ آبرو کی جانب دیکھتے غصے سے بولا تھا۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں عماد، ابھی تو میں تمہیں تمہارے انجام تک پہنچاؤں گی، آبرو بھی جواباً غصے سے بولی تھی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کس کے ساتھ الجھ رہی ہو، تم مجھے بھی جانتی نہیں ہو۔ وہ اونچی آواز میں اسے دھمکی دینے لگا۔ مجھے واقعی اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنے گھٹیا ہو سکتے ہو۔ آبرو کی بات پر عماد کے غصے میں اضافہ ہوا تھا۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، تمہارے الفاظ تمہیں بہت مہنگے پڑنے والے۔ اس نے قدم آگے بڑھائے۔ لاؤنج میں موجود باقی سب نفوس انسان کے بھیس میں موجود اس حیوان کو دیکھ رہے تھے۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ ہاں، دیکھنا تمہاری اکڑ میں کیسے توڑوں گا۔ وہ غصے سے ایک ایک لفظ چبا کر بول رہا تھا۔ تو کیا دوبارہ مجھے اغوا کرواؤ گے؟ عماد کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ تمہارے خلاف ایک ایک ثبوت موجود ہے میرے پاس۔ آبرو کا لہجہ سخت تھا۔ تمہیں تمہارے انجام سے اب کوئی چیز نہیں بچا سکتی، وہ اٹل لہجے میں بولی تھی۔ عین اسی وقت گیٹ سے باہر ایک گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر آفاق موجود تھا، جبکہ دوسری جانب سے رابعہ بیگم گاڑی سے اتری تھیں۔ وہ دونوں قدم اٹھاتے گیٹ کی جانب آئے تھے۔ گیٹ کھلا دیکھ کر وہ اندر داخل ہوئے۔ اندر سے آتی آوازوں پر وہ جلدی سے لاؤنج کی جانب بڑھے تھے۔ پہلے تو میرے بھائی نے تمہیں بدنامی سے بچا لیا تھا، مگر اس بار میں تم سب کا وہ حال کروں گا کہ تم لوگ کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ وہ ہر حد پار کر چکا تھا۔ اس کے منہ سے نکلنے والے یہ الفاظ پیچھے کھڑے آفاق اور رابعہ بیگم نے بھی سنے تھے۔ عماد کی پشت ان کی جانب تھی۔ آفاق نے تیزی سے آگے بڑھتے اسے بازو سے پکڑا اور اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا تھا، مگر عماد کو دیکھتے انہیں ایک دم حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ عماد لڑکھڑاتا ہوا کچھ دور ہوا۔ آفاق کو اس کے کہے الفاظ یاد آئے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے تم؟ ہاں، کہ کیا کرو گے؟ وہ غصے سے اس کی جانب دیکھتا بولا تھا۔ تم بیچ میں مت بولو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ آفاق کو پیچھے ہٹاتا دوبارہ آبرو کی جانب مڑا کہ آفاق نے اسے دوبارہ کھینچتے اپنے سامنے کیا تھا۔ ابھی اور اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ، آفاق اونچی آواز میں بولا۔ نہ جاؤں تو کیا کر لو گے تم؟ وہ آفاق کی جانب قدم بڑھاتا بولا۔ تم کیا سمجھتے ہو ایک انگوٹھی پہنا کر تم اسبا کو مجھ سے بچا لو گے؟ تم دیکھنا۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی آفاق کا تھپڑ اس کے منہ کو بند کروا چکا تھا۔ یہ سب آفاق کی اس حرکت پر حیران ہوئے، جبکہ آفاق نے عماد کا گریبان پکڑتے اسے اپنے سامنے کیا تھا اور چہرے پر پتریلے تاثرات لیے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا بولا۔ اگر آئندہ تم نے اس گھر کی جانب آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں یہ دنیا تمہارے لیے اتنی تنگ کر دوں گا کہ تمہیں سر چھپانے کی بھی جگہ نہیں ملے گی۔ اس کے الفاظ اور لہجے میں بہت سختی تھی۔ اور اگر میں ایسا نہ کر سکا تو میرا نام آفاق قریشی نہیں۔ اس سے پہلے کہ آفاق مزید کچھ کہتا رابعہ بیگم نے آگے بڑھتے انہیں الگ کیا تھا۔ عماد اپنا گریبان درست کرتے بولا۔ دیکھ لوں گا میں تم سب کو، کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔
वो गुस्से से बोलता बाहर की जानिब बढ़ने लगा। आफाक का लहजा वाकई उसे खौफजदा कर गया था। उसकी बात पर आफाक फौरन बोला, जिंदा बचकर आज तुम भी यहाँ से नहीं जाते अगर मुझे जलाल मामू का ख्याल ना होता। उसकी बात सुनते ही मात गेट अबूर कर गया, जबकि आफाक और राबिया बेगम के अलावा वहाँ खड़े तमाम नफूस अभी तक इस वाक़े के ज़ेर असर थे। तुमने ये सब हमें पहले क्यों नहीं बताया बेटा? राबिया बेगम ने सामने बैठी आबरू को मुखातिब किया, जो सामने स्वालिया बेगम के पास बैठी उन्हें शुरू से लेकर आखिर तक हर बात बता चुकी थी, जबकि राबिया बेगम के साथ बैठा आफाक चेहरे पर संजीदा तासुरात लिए उनकी बातें सुन रहा था। मैं आपको क्या बताती फुप्पो, मुझे तो खुद ये बात एक हफ्ता पहले मालूम हुई है। सोफों से कुछ फासले पर इस बार रुतबा खड़ी उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। तुमने अशर से इस मामले के मुतल्लिक बात की थी? आबरू ने स्वालिया बेगम की जानिब देखा और बोलने लगी, जी फुप्पो, मैंने इस केस के मुतल्लिक सबसे पहले अशर से ही बात की थी। आफाक ने भी आबरू की जानिब देखा। फिर क्या जवाब दिया उसने? राबिया बेगम के सवाल पर आबरू ने अशर के रवैये के बारे में बताती चली गई। मुझे अशर से ऐसी उम्मीद नहीं थी। राबिया बेगम के लहजे में अफसोस था। वो जलाल मामू का बेटा है अम्मी। आफाक ने भी अपनी चुप तोड़ी थी। आपको इससे ऐसे ही रवैये की उम्मीद रखनी चाहिए थी। सब आफाक की जानिब मुतवज्जा थे। आबरू, आफाक ने आबरू को मुखातिब किया, तुम ये केस ज़रूर लड़ोगी। लाउंज में मौजूद सब नफूस ने आफाक की जानिब देखा। आफाक ने अपनी बात जारी रखी थी, ताकि इमाद जैसा इंसान, जो इंसान कहलाने के लायक नहीं, वो जल्द अपने अंजाम को पहुंचे। वो रुका। इस बार आफाक के चेहरे की जानिब देखने लगी। तुम्हें इस सिलसिले में बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक तुम्हारा ये भाई जिंदा है, तुम्हें और तुम्हारे घर वालों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसबा की नज़रों का मरकज़ राबिया बेगम के बराबर में बैठा आफाक था, जो इसके मुकद्दर में लिख दिया गया था। वो हमेशा से तहफ़्फ़ुज़ ही तो चाहती थी, और उसकी किस्मत में भी मुहाफ़िज़ लिखा गया था। आज पहली बार उसे देखते इसबा का दिल गैर मामूली अंदाज में धड़का था। खुद पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस करते आफाक ने इसबा की जानिब देखा। दोनों की नज़रें मिलते ही इसबा ने फौरन नज़रों का जाविया बदला था। आफाक ठीक कह रहा है आबरू, तुम्हें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आबरू इनकी बात पर इस बात में सर हिलाते मुस्कुराई थी। उसकी मुस्कुराहट आसूदा थी। मुश्किलें आसान होने लगी। मैं कल पार्टी में नहीं आऊंगी अमल। वो फ़ोन कान से लगाते अपने कमरे में बेड पर बैठी थी। उसकी बात सुनते दूसरी जानिब मौजूद अमल के चेहरे पर नागवारी दर आई। मगर रुतबा, तुमने मुझसे कहा था कि तुम ज़रूर आओगी। अमल की आवाज़ स्पीकर पर उभरते ही रुतबा बोलने लगी, मुझे याद है अमल, मगर कुछ नहीं रुतबा, तुम्हें आना होगा। मैं इस बार इनकार नहीं सुनूंगी। वो उसकी बात काटते बोली, वो अपना बना बनाया खेल यूं बर्बाद होते नहीं देख सकती। मेरी बात समझने की कोशिश करो अमल, मैं नहीं आ पाऊंगी। रुतबा के लहजे में बेबसी थी। इन हालात में वो घर से नहीं निकल सकती थी। तुम एक बार मुझे वजह तो बताओ रुतबा, क्या तुम्हें कोई आने से रोक रहा है? अमल की इस बात पर वो फौरन बोली, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अमल की आवाज़ फिर स्पीकर पर उभरी थी, तो फिर क्या बात है रुतबा? अमल के दिमाग में अचानक ये ख्याल आया था। वो रुतबा के बोलने से पहले बोलने लगी, वेट अ मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे साथ जाना नहीं चाहती? वो उसे इमोशनली ट्रैप कर रही थी। ऐसी बात नहीं है अमल, तुम गलत समझ रही हो। मैं रुतबा के लहजे में वाज़ेह था कि अमल अपनी कोशिश में कामयाब ठहरी। इट्स ओके रुतबा, मैं समझ गई। अमल के लहजे में छुपी नाराज़गी महसूस करें रुतबा हार मानते हुए बोली, मैं आऊँगी अमल, मैं आऊँगी। अमल के लबों को फतह की मुस्कुराहट ने छुआ था। तुम सच कह रही हो ना रुतबा? देखो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं। अमल ने बात अधूरी छोड़ दी। आई नो अमल, डोंट वरी, मैं आऊँगी। उसने बात दोहराई कि जहन में एक सवाल पैदा हुआ था। अमल, ये पार्टी किस? इट्स अ सरप्राइज रुतबा। अमल उसकी बात काटते बोली। इससे पहले कि रुतबा कुछ और कहती, उसे सामने से आबरू अपनी जानिब आती दिखाई दी थी। उसने बाद में अमल से पूछने का इरादा करते फ़ोन काट दिया था। आसमान पर छाए बादलों के साथ चलती हल्की ठंडी हवा माहौल को खुशगवार बना रही थी, मगर गाड़ी में बैठे इस इंसान पर इस माहौल का कोई असर नहीं हो रहा था। गाड़ी अपनी मंजिल पर पहुंचते रुक गई। गाड़ी की पिछली सीट से उतरने वाली साइमा ताई थी। चेहरे पर नागवार तासुरात लिए वो कदम उठाती गेट तक गई थी और बेल पर हाथ रखते आसपास नजर दौड़ाने लगी। ये गली मोहल्ले उन्हें हमेशा से ही नापसंद थे। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और खोलने वाली हुरम थी। उसने उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। वो एक सरसरी निगाह उस पर डालती अंदर आ गई थी। लाउंज में पहुंचते उन्हें सामने ही इसबा बैठी दिखाई दी, जो एक सोफे पर बैठी किताब पढ़ने में मसरूफ थी। साइमा ताई पर नजर पड़ते वो फौरन उठ खड़ी हुई। उसे कुछ कहने से पहले साइमा ताई बोलने लगी, माँ कहाँ है तुम्हारी? लहजे में नागवारी थी। आप बैठे ताईजान, मैं अम्मी को बुलाती। वो इसबा की बात काटते बोली, मैं यहाँ बैठने नहीं आई, अपनी माँ को बुलाओ, मुझे उससे ज़रूरी बात करनी है। उनकी बात पर इसबा फौरन कमरे में चली गई। कुछ देर बाद सोहलिया बेगम इसबा के हमरा बाहर आई थी। अस्सलाम वालेकुम भाभी, आप खड़ी क्यों हैं? बैठें।
सोलह बेगम के बोलने पर साइमा ताई उनकी बात नज़रअंदाज करती बोली, तुमसे अपनी एक बेटी नहीं संभाली जाती सोलिया। उनकी बात पर सोलिया बेगम के चेहरे के तासुरात तब्दील हुए। हमारे घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया है उस लड़की ने। वो नफ़रत से बोली, भाभी आप। उन्होंने सोलिया बेगम को हाथ के इशारे से बोलने से रोका था। मैं यहाँ तुम्हारी बातें सुनने नहीं आई, मैं सिर्फ ये बताने आई हूँ कि बेहतर होगा कि तुम अपनी बेटी को लगाम डाल लो, क्योंकि जो कुछ वो करती फिर रही है ना, उसके नताइज बहुत भयानक होने वाले। साइमा ताई का लहजा, उनके अल्फाज इंतहाई हिद्दतआमेज़ थे। भाभी आप बैठें तो सही, हम बैठकर बात करते हैं। सोलिया बेगम ने बात संभालने की नाकाम कोशिश की। मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ बैठकर तुमसे बात करने का। तुम्हें क्या लगता है तुम राबिया और आफाक को हमारे खिलाफ करके कामयाब हो जाओगी? खुशफहमी है तुम्हारी। वो रुकी थी। देखना तुम्हारी बेटी की ये जिद तुम सबको कैसे बर्बाद करेगी। वो आज हर लिहाज भूल चुकी थी। मेरे बेटे ने हमदर्दी में उससे निकाह किया था, मगर उसने ये साबित कर दिया कि वो इसके काबिल ही नहीं। उनकी जुबान अंगारे बरसा रही थी। ऐन उसी वक्त एक टैक्सी गेट के सामने आकर रुकी थी। टैक्सी से उतरने वाली आबरू थी। टैक्सी ड्राइवर को किराया अदा करते हुए गेट की जानिब आई। खुला गेट देखते उसे कुछ हैरानी हुई थी। वो अंदर दाखिल हुई। उसकी समाज से अंदर आती आवाज़ टकराई थी। वो इस आवाज़ को पहचानती थी। कदमों में तेज़ी पैदा हुई। लाउंज में दाखिल होते उसकी समाज से साइमा ताई के अल्फाज टकराए थे। बहुत एहसान फरामोश हो तुम लोग, हमारे टुकड़ों पर पलकर हमें ही। बस ताई जान, आबरू की आवाज़ सब इस जानिब मुतवज्जा हो। साइमा ताई ने पलटकर उसकी जानिब देखा। आप हमारे ही घर में खड़े होकर हमें ही बातें सुना रही। साइमा ताई इस्तेज़ाई अंदाज में हंसी। वाह भाई वाह, वो आबरू की जानिब देखते बोल रही थी। 2 पैसे कमाकर तुम खुद को बड़ी चीज़ समझने लगी। देखना, मेरा बेटा तलाक के कागजात तुम्हारे मुंह पर मारेगा, तब तुम्हें पता चलेगा। यह वार बहुत भारी था। और फिर तलाक का तमगा सर पर सजा कर बैठी रहना, क्योंकि ये केस तो तुम किसी सूरत नहीं जीत पाओगी। आबरू ने गहरी सांस लेते खुद को बोलने के लिए तैयार किया था। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा ताईजान कि कौन जीतेगा और कौन हार को गले लगाएगा। आबरू की बात पर साइमा ताई के माथे पर बल नमूदार हुए। तुम देखना सोलिया, तुम्हारी ये लड़की अपनी ज़ुबान और हरकतों की वजह से कहीं भी घर नहीं बसा पाएगी। उसकी ये ज़ुबान सिर्फ इसे ही नहीं, तुम सबको भी जलील करवाएगी। मेरी बात याद रखना। वो तनफ़्फ़ुर से कहती चली गई थी, जबकि लाउंज में मौजूद नफूस के कानों में अभी तक उनके जहरीले अल्फाज गूंज रहे थे। आसमान स्याह चादर ओढ़े ज़मीन पर साया फिगन था। तारों की रोशनी भी स्याही को दूर करने में नाकाम थी। वो अपने कमरे में मौजूद था। घड़ी रात के 12 बजा रही थी। वो सोफे पर लैपटॉप गोद में रखे काम में मसरूफ़ था। आंखों पर चश्मा लगाए वो तेज़ तेज़ कुछ टाइप कर रहा था। सबरीना कमरे में दाखिल हुई। उस पर नज़र पड़ते फ़ौरन बोली, बेटा रात के 12 बज रहे हैं। अगर अभी भी तुम काम ही करते रहोगे तो आराम कब करोगे? वो उसकी जानिब कदम बढ़ाती बोली, बस थोड़ा सा काम रह गया है अम्मुजान, फिर आराम। उसकी बात बीच में रह गई। वो चीखा, 1 बार 2 बार 3 बार। सबरीना तेज़ी से उसके करीब आई। तुम्हारी तबीयत ठीक है बेटा? वो मुतफक्किर अंदाज में बोली और हाथ उसके माथे पर रखा। हिद्दत महसूस करते परेशानी से बोली, तुम्हें तो बुखार है ताशमीन? वो उसके चेहरे को छू रही। नहीं अम्मुजान, वो बस, माना कि बहुत बड़े डॉक्टर हो तुम, मगर अपनी सेहत से यूं लापरवाही तो मत किया करो। वो उसकी बात काटते बोली, अम्मुजान आप परेशान मत हो, बस हल्का सा। मत भूलो ताशमीन कि माँ से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं होता। उनकी बात पर वो मुस्कुरा दिया था। जी डॉक्टर साहिबा, मुझे याद है। उसने लैपटॉप साइड पर रखा और सबरीना को अपने पास बिठाते बोला, तो फिर बताएं डॉक्टर साहिबा कि इस मरीज़ के लिए आपके पास क्या इलाज है? ताशमीन की इस बात पर सबरीना ने खफगी से उसे देखा। ये मरीज़ अपनी सेहत के बारे में बहुत लापरवाह है। हर वक्त काम में मसरूफ़ रहता है, खुद को ज़रा वक्त नहीं देता। इसीलिए इसका इलाज ये है कि। वो रुकी थी। ये कि अब पूरा हफ्ता हॉस्पिटल नहीं जाएगा। ताशमीन फ़ौरन बोला, ये गलत है डॉक्टर साहिबा। उसकी बात पर सबरीना हाथ के इशारे से उसे रोकती बोली, इस मरीज़ का यही इलाज है। इनका लहजा फैसला कुन था। मगर अम्मुजान, मैं हॉस्पिटल से इतनी लंबी छुट्टी नहीं ले सकता। उसने एहतजाज करना चाहा। इतनी लंबी कहाँ है, 1 हफ्ता ही तो है। जवाब फ़ौरन आया था। मगर फिर भी अम्मुजान, आप जानती हैं ना कि हॉस्पिटल में 1 दिन भी। अच्छा बाबा, पूरा हफ्ता नहीं तो 4 दिन कर लो। इनकी बात पर वो मुस्कुराया था। इस बारे में सोचा जा सकता है। सबरीना ने भवें से कहते उसकी जानिब देखा। सोचना नहीं, करना है कि डॉक्टर की तजवीज़ है, अमल करना होगा। वो हंसने लगा था। जी डॉक्टर साहिबा, आप फिक्र मत करिए, मैं कल ही बात करता हूँ। शाबाश, चलो अब इसे बंद करो। इशारा लैपटॉप की जानिब था। और सो जाओ।
वो कहते उठ खड़ी। जो आपका हुक्म डॉक्टर साहिबा, उसने लैपटॉप बंद करते जवाब दिया। सबरीना मुस्कुराते कमरे से चली गई, जबकि ताशमीन इस मजबूत औरत को तब तक देखता रहा जब तक वो उसकी नज़रों से ओझल ना हो गई। वो आईने के सामने खड़ी खुद को संवारने में मसरूफ थी। झुकते ड्रेसिंग टेबल पर से लिपस्टिक वापस उसने झुकते ड्रेसिंग टेबल पर लिपस्टिक वापस रखी और एक निगाह आईने में नजर आते अपने अक्स पर डाली थी। सुर्ख रंग की शॉर्ट फ्रॉक के साथ चूड़ीदार पैजामा पहने वो बहुत दिलकश नजर आ रही थी। हल्का फुल्का मेकअप उसके नकूश को मजीद निखार रहा था। बालों को ऊंची पोनी में कैद किए वो जाने के लिए तैयार थी, मगर आज उसका दिल बहुत बेचैन था। उसने आज जब सौलिया बेगम से इजाज़त मांगी तो उनके खामोशी से इकरार करने पर वो हैरान हुई थी। फैसला उसके हक में था। उसे खुश होना चाहिए था, मगर उसे सौलिया बेगम की आंखों में झलकता तासुर याद था जो उसे बेचैन किए हुए था। वो घर के हालात बखूबी जानती थी, मगर फिर भी वो जानबूझ कर अनजान बन रही थी। पर उसके घर बैठ जाने से ये बिगड़े हालात संवर तो नहीं सकते थे, और वैसे भी इस बार वो अमल को इनकार नहीं कर सकती थी। पिछले हफ्ते भी वो घर के हालात की वजह से उसके साथ नहीं जा पाई थी। अमल ने उसे बहुत चाहत से बुलाया था। दिल फौरन दिमाग की सोचों पर हावी हुआ। अच्छा है, वो आज बाहर जाएगी तो उसका दिल भी बहल जाएगा। मगर फिर आंखों के सामने सौलिया बेगम का चेहरा आया था, जिस पर फिर बोझ पड़ गया था। अचानक समाज से फ़ोन की आवाज़ टकराई। नज़रें बेख्तियार घड़ी की जानिब गई थी। 6 बज चुके थे। उसने हाथ आगे बढ़ाते फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर जगमगाता नाम अमल का था। वो बाहर रुतबा का इंतज़ार कर रही थी। रुतबा ने मोबाइल अपने पर्स में रखा, दुपट्टा दुरुस्त करते कदम बाहर की जानिब बढ़ा दिए। लाउंज में उसे सिर्फ अज़बा बैठी दिखाई दी थी। वो उसे अपने जाने की इत्तला देती बाहर आ गई थी, जबकि उसके वजूद को मुतफक्किर आंखें तब तक देखती रहीं जब तक वो उनसे बोझल ना हो गई। सौलिया बेगम उसके लिए बहुत परेशान थी, पर जब औलाद आपके कदम के बराबर पहुंच जाए तो वो आपके लिए परेशानी का सामान बनती। वो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ गो थी, मगर कौन जानता था कि उनकी ये दुआ कबूलियत की मनाज़िल तय कर पाएगी भी या नहीं। उसे गेट से निकलते ही सामने स्याह रंग की गाड़ी नजर आई थी। वो इस गाड़ी को पहचानती थी। वो कदम उठाती गाड़ी तक गई थी। पिछला दरवाज़ा खोलते अंदर बैठ गई। सामने बैठी अमल और उसके दरमियान मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। उसकी गाड़ी में बैठते ही अमल के कहने पर ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की थी। यू आर लुकिंग सो प्रिटी रुतबा। अपनी तारीफ पर रुतबा मुस्कुराई और सर को खम करते बोली, थैंक यू। उसने अमल को उसने अमल की जानिब देखा, जो गहरे सब्ज रंग की घुटनों तक आती स्लीवलेस फ्रॉक के साथ हमरंग ट्राउजर में मलबूस उसे ही देख रही थी। उसके स्याह बाल पश पर बिखरे हुए थे। इससे पहले कि रुतबा उसकी तारीफ के लिए मुंतखब किए गए अल्फाज अपनी ज़बान से अदा करती, अमल का फ़ोन बजने लगा। उसने कॉल अटेंड करते फ़ोन कान से लगा लिया था। हाँ हाँ, बस अभी हम कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। अमल ने दूसरी जानिब से पूछे जाने वाले सवाल का जवाब दिया था। हाँ हाँ, रुतबा भी मेरे साथ है। वो रुतबा की जानिब देखती बोली और कॉल ख़त्म करते मोबाइल वापस अपनी गोद में रख दिया था। मुझे कुछ बताओ तो सही अमल कि हम कहाँ जा रहे हैं। रुतबा के पूछने पर अमल फ़ौरन बोली थी, इट्स अ सरप्राइज़ रुतबा। फिर भी अमल, अब मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा है। रुतबा के चेहरे पर उलझन थी। फिक्र मत करो रुतबा, आज तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। आज का इवेंट तुम कभी नहीं भूलोगी। मेरा मतलब है कि आज तुम बहुत एंजॉय करोगी। वो अपनी बात की वजाहत करती मुस्कुराई थी। रुतबा भी मुस्कुराते खामोश हो गई। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी फार्म हाउस के सामने जा रुकी थी। वो दोनों गाड़ी से उतरकर अम वो दोनों गाड़ी से उतरी कि अमल बोली, सो वो आज हमें यहाँ शहरियार लाशारी ने इनवाइट किया है। इस नाम पर रुतबा के कान खड़े हो गए थे। वही शहरियार जिससे मैंने तुम्हें उस दिन पार्टी में मिलवाया था। अमल ने अपनी बात जारी रखी। शहरियार ने आज अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल होने की खुशी में सब यूनिवर्सिटी फेलोज को पार्टी दी है। अमल की बात मुकम्मल होते रुतबा बोली, मगर अमल, मैं तो उसे नहीं जानती। मेरा मतलब है तुम मेरे साथ हो रुतबा, और मैं उसे बहुत अच्छे से जानती। वो उसका हाथ अपने हाथ में लेते बोली थी, सो डोंट वरी, आओ मेरे साथ। वो उसे लिए अंदर बढ़ गई थी। हर जानिब रोशनियों का समा था। महंगे और पुरसताइश लिबास पहने वो सब एक दूसरे के साथ बातों में मसरूफ थे। स्विमिंग पूल से कुछ फासले पर मौजूद इस लॉन को बहुत नफासत से सजाया गया था। अमल और रुतबा भी वहीं खड़ी आसपास का जायजा ले रही थी। अमल का फ़ोन बजने लगा। फ़ोन पर जगमगाता नाम देखकर अमल रुतबा से एक्सक्यूज़ करते कदम उठाती कुछ फासले पर गई और कॉल अटेंड करते फ़ोन कान से लगा लिया कि शहरियार की आवाज़ समाज से टकराई थी। अमल, मेरी बात गौर से सुनो। अमल ने एक नज़र रुतबा पर डाली जो उसकी जानिब ही देख रही थी। बोलो। बोलो। अमल की आवाज़ बहुत मदम थी। तुम 10 मिनट तक किसी भी तरह रुतबा को ऊपर रूम में ले आओ, बाकी आगे मैं देख लूँगा कि क्या करना है। उसकी बात पर अमल, जो मुस्कुराते हुए रुतबा की जानिब देख रही थी, बोलने लगी, ओके शहरी, बट बी केयरफुल। मैं नहीं चाहती कि आज कोई भी गड़बड़ हो।
तुम फिक्र मत करो अमल, सब वैसे ही होगा जिस तरह हमने प्लान किया। तुम बस रुतबा को रूम में छोड़ते फौरन मेरे पास आना। ओके। अमल ने यह कहते फ़ोन काट दिया था। इतने में उसकी समाज से दोबारा फ़ोन बजने की आवाज़ टकराई थी। अम्मी सो गई इस बार? आबरू ने अपने सामने रखी बिरयानी की प्लेट की जानिब देखते सामने बैठी इसबा से पूछा था। नहीं, अम्मी तो जाग रही हैं। आबरू ने घड़ी की जानिब देखा जो रात के 9 बजा रही थी। सब खैर है ना इसबा? कोई आया था आज? आबरू ने खाना शुरू करते उससे पूछा। उसे आज ऑफिस से वापसी पर देर हो गई थी। घर वापस आते वो सौलिया बेगम से मिलते फ्रेश होकर अब खाना खाने बैठी थी। नहीं नहीं, कोई नहीं आया। वो बस रुतबा घर से बाहर है, इसलिए उन्हें नींद नहीं आ रही। आबरू को एकदम रुतबा का ख्याल आया था। कहाँ है वो? आबरू को एकदम परेशानी ने आ घेरा था। वो पार्टी पर गई है। इसबा के जवाब पर उसकी परेशानी में गुस्से का इजाफा हुआ था। किसके साथ? फौरी सवाल था। अमल के साथ। जवाब भी फौरन आया। ये लड़की भी ना, कितनी बार समझाया इसे, मगर ये मेरी बात नहीं मानती। आबरू गुस्से और अफसोस से मिले जुले तासुरात लिए बोली। इसबा खामोश रही। वापसी का कुछ बताया था उसने? आबरू के सवाल पर इसबा बोलने लगी। हाँ, कह रही थी कि अमल ही उसे घर छोड़ देगी। दोबारा अमल का नाम सुनते आबरू के गुस्से में इजाफा हुआ। वो सिर्फ एक बार अमल से मिली थी और उसकी एक मुलाकात में ही वो आबरू को पुरस्रार महसूस हुई थी। फिर उसकी रुतबा के साथ हुई वो लड़ाई भी आबरू जानती थी। उसने बहुत बार रुतबा को उससे दूर रहने का कहा था, मगर रुतबा ने हर बार उसकी बात को नज़रअंदाज किया था। आबरू ने खाने की प्लेट साइड पर करते अपना फ़ोन उठाया और रुतबा को फ़ोन मिलाने लगी। आबरू, पहले खाना तो खा लो। इसबा की बात पर आबरू उसकी जानिब देखती ही बोली। मैं बाद में खा लूँगी इसबा, अभी मुझे रुतबा से बात करनी है। आबरू की बात पर इसबा ने प्लेट की जानिब देखा जिसमें से आबरू ने बमुश्किल 2 से 3 चम्मच चावल खाए थे। वो अफसोस भरे अंदाज में प्लेट उठाती कमरे से चली गई, जबकि आबरू बार बार रुतबा को कॉल मिला रही थी। बेल जाने के बावजूद भी रुतबा फ़ोन नहीं उठा रही थी। उसने दोबारा कॉल मिलाई कि इस बार चौथी बेल पर फ़ोन उठा लिया गया। हेलो हेलो रुतबा। दूसरी जानिब से आती म्यूज़िक की आवाज़ के पेश नज़र आबरू ऊंची आवाज़ में बोली थी। दूसरी जानिब से कोई आवाज़ ना आई। रुतबा रुतबा, कहाँ हो तुम? वो दोबारा बोली कि दूसरी जानिब से एक आवाज़ उसकी समाज से टकराई थी। वो आवाज़ रुतबा की नहीं बल्कि अमल की थी। रुतबा ने आपको बताया नहीं कि वो आज कहाँ आई है? आबरू इस आवाज़ को पहचानती थी। मेरी रुतबा से बात करवाओ। आबरू के लहजे की सख्ती अमल महसूस कर सकती थी। वो अभी बहुत मसरूफ़ है। अमल ने कहते फ़ोन काट दिया और फ़ोन पावर ऑफ करते अपने पास रख लिया था, जबकि उसकी नज़रों का मरकज़ सामने सादिया के साथ बातों में मसरूफ़ रुतबा थी, जो अपना मोबाइल और पर्स यहीं अमल के पास छोड़ गई थी। आबरू ने दोबारा कॉल मिलाई, मगर रुतबा का फ़ोन बंद जा रहा था। उसके गुस्से में मज़ीद इजाफा हुआ। उसका दिल रुतबा के लिए बहुत परेशान होने लगा था। पहले केस की परेशानी और उसे अब ये रुतबा। आबरू का सर दर्द करने लगा था, मगर उस लम्हे वो सिवाय इंतज़ार के और कुछ नहीं कर सकती थी। तो फिर कैसा लगा तुम्हें ये फार्म हाउस? अमल के पूछने पर रुतबा मुस्कुराते बोली। बहुत बड़ा और खूबसूरत। लहजे में सताइश थी। ये फार्म हाउस शहरियार के डैड का है। वो मेरे डैड के पुराने दोस्त हैं। वो रुकी थी। तुमने शहरियार के डैड का नाम तो सुना ही होगा। आखिर उन्हें कौन नहीं जानता? अमल की बात पर रुतबा के चेहरे पर उभरता लाइल्मी का तासुर देखते वो फिर बोली थी। फयाज लाशारी, जो लाशारी टेक्सटाइल्स के ओनर है, वही शहरियार के डैड। रुतबा के चेहरे पर शनासाई की रमक उभरी थी। ओह आई सी। फयाज लशारी को वो हयात साहब की वजह से जानती थी, क्योंकि वो भी इसी कंपनी में एक एम्प्लॉय थे, मगर उसने इस बात का जिक्र अभी मुनासिब नहीं समझा था। इससे पहले कि अमल कुछ और कहती, एक वेटर हाथ में जूस की ट्रे लिए उनके करीब आ गया था और अमल के दिमाग ने हरकत की। उसने जूस का ग्लास उठाते रुतबा की जानिब बढ़ाया था, मगर रुतबा के पकड़ने से पहले वो ग्लास अमल के हाथ से स्लिप हुआ और तब रुतबा के कपड़ों को दागदार कर गया था। रुतबा फौरन पीछे हटी, जबकि शीशे का वो ग्लास ज़मीन पर गिरते कई टुकड़ों में तकसीम हो गया था। म्यूज़िक की तेज़ आवाज़ की वजह से कोई भी उनकी जानिब मुतवज्जा ना हुआ था। सो सॉरी रुतबा, पता नहीं कैसे। इट्स ओके अमल, कोई बात नहीं। रुतबा अपनी फ्रॉक का दामन देखती बोली, जो मुकम्मल भीग चुका था। तो मेरे साथ आओ रुतबा। वो उसका हाथ थामते उसे अपने साथ ले जाने लगी थी। अमल, मेरी बात तो सुनो। वो उसका हाथ थामते उसे अपने साथ ले जाने लगी। अमल, मेरी बात तो सुनो। रुतबा उसके साथ खिंचती चली गई। एक कमरे के सामने पहुंचते वो उसे लिए अंदर दाखिल हुई। तुम यही इंतज़ार करना रुतबा, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस का अरेंज करती। अमल, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ज़रूरत है रुतबा, ये मेरी गलती है, मुझे ही ठीक करना होगा। अमल के बोलने पर रुतबा बोलने ही लगी कि अमल दोबारा बोली।
तुम यहीं रुकना, मैं अभी आती हूँ। वो ये कहते वहाँ से चली गई, जबकि रुतबा के अल्फाज उसकी जुबान पर आते रुक गए थे। उसने एक नज़र कमरे में मौजूद सामान की जानिब देखा। कमरे को बहुत नफीस तरीके से सजाया गया था। वो खामोशी से बेड पर बैठ गई थी, क्योंकि इसके अलावा इसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो वहीं कमरे में बैठी अपने दामन पर लगे इस दाग को देख रही थी कि एकदम कोई कमरे में दाखिल हुआ। वो फौरन अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। कौन कौन हो तुम? उस शख्स की पुश्त रुतबा की जानिब थी। रुतबा की आवाज़ पर वो दरवाज़ा लॉक करता पलटा। वो शहरियार था। रुतबा को फौरन अपनी पोजीशन का एहसास हुआ। उसे यूं अपने साथ कमरे में अकेले देखते उसके आसान खता हुआ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज़ में घबराहट वाज़ेह थी। उसकी इस हालत पर शहरियार महसूस हुआ था। ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए कि तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही? इसके चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट रुतबा को खौफजदा कर रही थी। वो कदम रुतबा की जानिब बढ़ाने लगा। रुतबा का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। माथे पर पसीने की नंदी बूंदें नमूदार हुई थी। दरवाज़ा खोलो, मुझे मुझे बाहर जाना है। उसका हलक सूख चुका था। आवाज़ लड़खड़ाहट का शिकार थी। सुर्ख रंग बहुत जच रहा है तुम पर। वो उसकी बात को नज़रअंदाज करता बोला। रुतबा की हथेलियां पसीने से भीगने लगी। तुम दूर रहो, मेरे पास मत आना। उसके बढ़ते कदमों पर रुतबा के कदम बेख्तियार पीछे की जानिब उठने लगे थे। नहीं तो क्या करोगी? हाँ, शोर मचाओगी, सबको बुलाओगी? तो बुलाओ, मैं भी यही चाहता हूँ कि लोग तुम्हें यहाँ यूं अकेले मेरे साथ देखें। वो रुतबा से सिर्फ चंद कदम के फासले पर खड़ा था। देखो, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रुतबा की कमज़ोर आवाज़ पर वो हंसने लगा था। याददाश्त बहुत कमज़ोर है तुम्हारी रुतबा, बहुत अहम चीज़ों और वाक़यात भूल जाती हो। वो मज़ीद आगे बढ़ता रुतबा को अपनी सांसें बंद होती महसूस हुई। चलो कोई बात नहीं, मैं याद करवा देता हूँ। उसके अल्फाज रुतबा को वो सब याद दिला रहे थे जिसे वो फरामोश कर बैठी थी। अब तो यकीनन तुम्हें सब याद आ क्या होगा। रुतबा के लब फड़फड़ाए थे। तो तुम इसका बदला? रुतबा को अपनी आवाज़ कहीं दूर से आती महसूस हुई थी। हाँ बिल्कुल, मगर अपने अंदाज में। शहरियार ने आगे बढ़ते इसके गाल को छूने की कोशिश की तो तब रुतबा उसे धक्का देते साइड से निकल गई थी, मगर उसके कदम शहरियार के अल्फाज से पथरा गए थे। यही दरवाज़ा आज मेरे इंतकाम के पूरा होने के बाद ही खुलेगा। वो उसके करीब आया था। अभी देखना मैं तुम्हारी इज्जत को सबके सामने कैसे दो कौड़ी का करता हूँ। पारसाई का बहुत मान है ना तुम्हें, अब देखना। उसके पास बड़ा गुलदान पूरी शिद्दत से ज़मीन पर दे मारा था। रुतबा ने फौरन अपने कानों पर हाथ रखे। उसने इसी अंदाज में दूसरा गुलदान उठाते ज़मीन पर मारा। वो उसी अंदाज में कमरे में मौजूद तमाम चीज़ें उठा उठाकर ज़मीन पर फेंकने लगा। कांच के टूटने की आवाज़ बहुत ऊंची थी। ये क्या कर रहे हो? रुतबा उसकी इस हरकत की वजह समझने से कासिर थी। तुम्हारी बर्बादी का इंतज़ाम। बाहर से आते लोगों की आवाज़ों पर वो उसके करीब आया था। कोई लॉक को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। शहरियार रुतबा के करीब आया और उसके दोनों हाथ उठाते अपने गिरेबान पर रख दिए थे। उसी वक्त लॉक टूटने की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया था। लोग अंदर दाखिल होने लगे और रुतबा को एहसास हुआ कि आज उसका आखिरी दिन। बाकी अगली किस्त में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।